نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، سماج کی عزت دار پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام پیغمبروں، تمام رسولوں، تمام نبیوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی۔ ہر مسلمان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو ہر انسان کو قبرستان کے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا، جس آدمی کا انتقال ہو گیا، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، گویا اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی۔ انسان کا حساب و کتاب، انسان کا جزا اور سزا صرف قیامت کے دن ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، تبھی ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ملے گا، ہمیں ہمارے برائیوں کا بھی بدلہ ملے گا، بلکہ انسان اگر نیک ہے تو اس کا پھل قبر کے اندر سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان اگر برا ہے، انسان اگر گنہگار ہے، انسان اگر نافرمان ہے، انسان اگر بے نمازی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، تو اس کا یہ انجام اور اس کا یہ سزا اسی قبر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان آج اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کا یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ قبر کوئی چیز نہیں ہے، قبر کے عذاب کو کس نے دیکھا ہے، یہ حساب و کتاب کوئی چیز نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کس نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو کس نے دیکھا ہے؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں میں، ہمارے نوجوان نسل کے اندر آج یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں، عذاب قبر کوئی چیز نہیں۔ یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ ہماری زندگی یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، اسی کے اندر ہم جئیں گے اور اسی کے اندر ہم مر جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت اور جہنم نہیں، کوئی آخرت کا دن نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں۔ یعنی یہ کافر جو ہیں، یہ مشرک جو ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ قیامت کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ آخرت کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ قبر کے عذاب کو اور قبر کی زندگی کو اور برزخ کی زندگی کا یہ سرے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ لیکن اسلام اور ہمارے اسلام کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، رسول بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت سارے مسائل پر گفتگو کی، آپ نے قیامت کے مسائل پر بھی گفتگو کی، آپ نے قبر کے مسائل پر بھی گفتگو کی، آپ نے جنت اور جہنم کے مسائل پر بھی گفتگو کی، آپ نے حساب و کتاب کے مسائل پر بھی امت کو بتایا اور سمجھایا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الجنائز کی یہ حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب
جب میت کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے، جب جنازے کو کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان لے کر کے جایا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر مرنے والا نیک ہے، اگر مرنے والا نماز لے کر کے جا رہا ہے، اگر مرنے والا قرآن کی تلاوت لے کر کے جا رہا ہے، اگر مرنے والا ایمان کی دولت لے کر کے جا رہا ہے، اگر مرنے والے کے پاس توحید ہے، اگر مرنے والے کے پاس اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر نیک آدمی ہے، وہ مردہ بولتا ہے اور کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر کے چلو قبرستان، مجھے جلدی قبر کے اندر دفن کرو۔ اس لیے اگر آدمی نیک ہے تو وہ اپنی نعمتوں کا انتظار کر رہا ہے، وہ جنت کا انتظار کر رہا ہے، وہ جنت کے بچھونے کا انتظار کر رہا ہے، وہ جنت کے لباس پہننے کا انتظام کر رہا ہے، وہ جنت کی ہواؤں کا، جنت کی کھڑکی کا اور جنت کے دروازے کا، وہ اپنے رب سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر مرنے والا وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر مرنے والا بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر مرنے والا اس کے پاس دین نہیں ہے، اگر مرنے والا اس دنیا سے شرک لے کر کے جا رہا ہے، اگر اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے، اگر مرنے والے کے پاس قرآن کی کوئی تلاوت نہیں ہے، اس میں مرد بھی شریک ہیں اور عورتیں بھی شریک ہیں۔ اگر عورتوں کے پاس بھی ایمان نہیں ہوگا، اگر عورتوں کے پاس بھی نماز نہیں ہوگی، اگر عورتوں کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی بلکہ بے پردگی ہوگی، بے حیائی ہوگی، بے شرمی ہوگی، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ مردہ کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے مصیبت، ہائے بربادی، ہائے میری ذلت، ہائے میری رسوائی، این تذہبون بہا، کہاں لے کر کے مجھے جا رہے ہو، مجھے کیوں قبرستان کے اندر لے جا رہے ہو، مجھے کیوں دفن کرنے لے کر کے جا رہے ہو، میری دنیا تو یہاں ہے، میری دولت تو میرے گھر کے اندر ہے، میری زمین تو دنیا کے اندر ہے، میرا محل، میرا مکان تو دنیا کے اندر ہے، میری اولاد تو دنیا کے اندر ہے، میرا بینک بیلنس تو دنیا کے اندر ہے، میری دنیا ہے، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس مردے کی اس آواز کو دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر مردے کی چیخ و پکار کو، اگر مردے کی تکلیفوں کو اللہ رب العالمین اگر دکھا دیتا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لَصَعِقَ الْإِنسان، تو یہ انسان بے ہوش ہو جاتا، یہ انسان بے ہوش ہو جاتا۔ اور یہ جو مردے سنتے ہیں یہ اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے ان کو سناتا ہے، یہ کوئی کرامت، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے اس مردے کو سناتا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر والے، تمہارے اولاد آج نہ تمہارے بیوی تمہارے کام آ رہی ہے، نہ تمہارے بچے تمہارے کام آ رہے ہیں، نہ تمہاری دولت تمہارے کام آ رہی ہے، نہ یہ پوری دنیا تمہارے کام آ رہی ہے، نہ رشتہ دار تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بیوی بچے، تمہاری دنیا، تمہاری دولتیں سب تجھے چھوڑ کر کے جا رہی ہے، تجھے تنہا، تجھے اکیلا قبرستان کے اندر جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قبر کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے۔ کسی انسان کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیش کی نہیں ہے، ہر انسان کو اس قبر کے مرحلے سے اور اس قبر کی زندگی سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اور یہ سوال ہر کسی سے ہوگا،
नमाज जो पढ़ रहा है उससे भी सवाल होगा, जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उससे भी सवाल होगा, जो ईमान पर है उससे भी सवाल होगा, जो ईमान पर नहीं है उससे भी ये सवाल होगा। यानी हर इंसान से ये सवाल होगा। और क्या सवाल होगा? बच्चों से भी यही सवाल होगा, बूढ़ों से भी यही सवाल होगा, औरतों से भी यही सवाल होगा, और हमारे नौजवानों से भी यही सवाल होगा। फरिश्ते सबसे पहला सवाल करेंगे, मन रब्बुक, रब को पहचानते हो? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा खालिक कौन, तुम्हारा मालिक कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन? अगर रब को हम पहचानेंगे, रब को हम जान रहे हैं, अगर रब की बात मान रहे हैं और रब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी मुसीबत के आप कब्र के अंदर इस छोटे से सवाल का जवाब फौरन दे देंगे। नमाजी आदमी नमाज लेकर के जा रहा है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं लगेगा फरिश्तों को देख करके। कब्र के अंदर उसको कोई डर महसूस नहीं होगा, वो फौरन जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो वही है जिसके सामने मैं सजदा करता था, मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ता था, मैं असर की नमाज पढ़ता था, मैं मगरिब की नमाज पढ़ता था, मैं इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता था, मैं फजर की नमाज, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, लेकिन मैं फजर की नमाज नहीं छोड़ता था। क्या कहेगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, फौरन उसकी ज़बान पे ये लफ्ज़ आ जाए। लेकिन वही आदमी अगर बेनमाजी है, आज हमारे नौजवान मस्जिदों से भाग रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आने के लिए हमारे नए नस्ल के लोग आज तैयार नहीं है, मस्जिद को हम आबाद करना नहीं चाहते हैं। अगर बेनमाजी आदमी, कोई बेनमाजी औरत, कोई बेनमाजी नौजवान, बेनमाजी बड़े बूढ़े को अगर कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया जाता है, फरिश्ते उनसे भी यही सवाल करते हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? उसने दुनिया के अंदर रब के सामने सजदा नहीं किया, उसने दुनिया के अंदर रब की तौहीद को नहीं पहचाना, दुनिया के अंदर ईमान क्या चीज थी उस ईमान पर उसने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, दुनिया के अंदर तौहीद क्या चीज थी, तौहीद पर उसने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। वो क्या कहेगा? हाय अफसोस, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी मुसीबत, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। उसके बाद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, दूसरा सवाल किया जाएगा, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है? कौन जवाब देगा? जो आदमी अपनी जिंदगी को नबी के दीन के मुताबिक गुजार रहा है। आज हम इस दीन को छोड़ रहे हैं, आज हम इस दीन से भाग रहे हैं, आज मुसलमान दीन से नफरत कर रहा है। आज जो नबी का कलमा पढ़ रहा है, जो कहता है कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, आज वो मुसलमान दीन से नफरत कर रहा है, दीन से मुर्तद हो रहा है, काफिर हो रहा है। आज बहुत सारी नौजवान लड़कियां आप देखिए इस्लाम को छोड़ रही हैं, दीन को त्याग दे रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब को कबूल कर रही हैं, गैर दीन को कबूल कर रही हैं, इस्लाम से नफरत कर रही हैं, गैरों के साथ, काफिरों के साथ वो भाग रही हैं, इस्लाम को छोड़ दे रही हैं और इस्लाम से नफरत कर रही हैं। तो इस दीन से आज हमें कोई लगाव नहीं है, इस दीन से आज हमारी नई नस्ल के नौजवान आज इस दीन को सीखने के लिए तैयार नहीं है। कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे, अगर उनसे पूछ दिया जाए कि आयतल कुर्सी आपको याद है, तो अफसोस के साथ हमारा सर झुक जाएगा। लेकिन हमारे नौजवानों को तौफीक नहीं होती दीन सीखने की। आयतल कुर्सी जिसका इतना बड़ा सवाब, आप सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लीजिए, शाम तक आपकी हिफाजत कौन करेगा? इंसान नहीं करेंगे। गार्ड रखने की जरूरत नहीं है दरवाजे पे, दुकान पर नौकर और गार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से फरिश्ते भेज करके आपकी भी हिफाजत करेगा, आपके घर की भी हिफाजत करेगा और आपके दुकान की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरिश्तों के जरिए कराएगा। रात को आप बिस्तर पर जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, आप आयतल कुर्सी, जहां बहुत सारी दुआएं हमारे नबी पढ़ते थे, वहीं पर अल्लाह के नबी ने आयतल कुर्सी भी सिखाई कि आप आयतल कुर्सी पढ़ करके सो जाइए,
रात भर आप फरिश्तों की हिफाजत में रहेंगे, फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, आपके घर की हिफाजत करेंगे। आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं, अगर पूछ दिया जाए वितर की नमाज में दुआ कुनूत किसके याद है, बहुत सारे नौजवान ऐसे मिलेंगे, सिर्फ वितर की नमाज हम पढ़ रहे, हाथ उठाए में क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब याद करने की जरूरत है, ये सब सीखने की जरूरत है। कितने नौजवान ऐसे मिल जाएंगे उनको जनाजे की दुआ भी नहीं याद है। माँ बाप ने बहुत लाड से पाला, हर तरह की सहूलतें दी, माँ बाप ने खिलाया पिलाया, एक जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, लेकिन औलाद आज इतनी नाफरमान है, इतना दीन से दूर है कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, सामने बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन औलाद के पास दो लफ्ज नहीं है रहम के लिए और मगफिरत के लिए कि अपने बाप के लिए रहम का दो लफ्ज कह दे, अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ कर दे, अल्लाहुम्मा मगफिर लहू, अल्लाहुम्मा हरमहू, अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बाद। फरिश्ते इसी दीन के बारे में कब्र के अंदर सवाल करेंगे, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। अगर आदमी दुनिया के अंदर दीन से लगा रहा, दीन से मोहब्बत करता रहा, अल्लाह से उसको मोहब्बत है, रसूल से उसको मोहब्बत थी, फौरन जवाब दे देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, सबसे सच्चा और सबसे सही। अगर कोई दीन है मैंने उसी दीन के मुताबिक यानी इस्लाम के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। आज हमारे नौजवानों को देख लीजिए, आज मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन इस दुनिया के अंदर अगर कोई कौम है तो यहूद हैं। आप सूरह मायदा आयत नंबर 182 पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को बताया है, और वाकई दुनिया के अंदर आप नजर उठा करके देख लीजिए, इस्लाम से अगर कोई दुश्मनी मोल ले रहा है, मुसलमानों से सबसे ज्यादा अगर किसी को दुश्मनी है तो यहूद को आप पाएंगे और मुशरिकों को पाएंगे, यानी जो काफिर है सबसे ज्यादा मुसलमान से दुश्मनी है और सबसे ज्यादा इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन आज मुसलमान, हमारे नौजवान उसी यहूद के तरीके पर चल रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे जो यहूदियों जैसा बाल रखते हैं, बीच में बाल को छोड़ दिया, इस तरफ का काट लिया, इस तरफ का काट लिया और पीछे से काट लिया और ऊपर एक कोहान की शक्ल दे दी, और उसी यहूदियों के तरीके पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज यही यहूदी देख लीजिए, आज मुसलमान के दुश्मन है, जिनके ऊपर लानत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत तक, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत की है। हर फर्ज नमाज में, हर नमाज के अंदर, चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे अकेली नमाज हो, चाहे जनाजे की नमाज हो, हर नमाज के अंदर अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है, लाजिम और जरूरी है। उस फर्ज, उस नमाज के अंदर हम क्या कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें जन्नत के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम किया। मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। अल्लाह के नबी दुआ किया करते थे, अपने हाथ को जब भी उठाते अल्लाह से कहते, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब व किताब कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, अंबिया के साथ, शहीदों के साथ, ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब नेक लोगों के साथ करना। उसके बाद उसी सूरह फातिहा के अंदर हर नमाज के अंदर हमारे नबी कहा करते थे और अपनी पूरी उम्मत को सिखाया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चलाना जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। तमाम कुरान की तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन ने, तमाम तफसीर की, कुरान की तफसीर करने वाले मुफस्सिरीन ने ये कहा है, गैरिल मग़ज़ूब से मुराद यहूद है, उनके ऊपर अल्लाह की लानत, क्योंकि अल्लाह ने उनके ऊपर लानत की है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और ये नसारा के रास्ते पर यानी ईसाइयों के रास्ते पर भी हमें नहीं चलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
आज इन यहूदियों को, कौम बनी इसराइल को बड़ी इज्जत दी थी, हर तरह की नेमतें अल्लाह ने उनको दी थी, हर तरह की नेमतें और इनाम और इकराम की बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िल की। अल्लाह ने सूरतुल बकरा के अंदर बयान फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो, अपनी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें दी थी, तुम्हें वो फजीलत दी थी, आलमीन पर किसी को मकाम और किसी को मर्तबा नहीं दिया था। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से पहले बनी इसराइल को अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम दिया था। इसी बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से रेडीमेड खाना, पका पकाया खाना, मन्नो सलवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया। ये कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतों से नवाजा कि उनको खेती बाड़ी करने की कोई जरूरत थी, घर के अंदर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, आसमान से डायरेक्ट उनके ऊपर खाना नाज़िल होता। उसके बाद भी ये यहूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालफत की, रसूलों की मुखालफत की, यहाँ तक कि बहुत सारे अंबिया को बनी इसराइल ने, बहुत सारे अपने नबियों को, अपने रसूलों को कत्ल कर दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कूनू किरदतन खासिईन, हमने इन यहूद को इनकी हरकतों की बुनियाद पर कूनू किरदतन खासिईन, हमने इन्हें बंदर बना दिया है, हमने इन्हें बंदर बना दिया। वजअल मिनहुल किरदत वल खनाजीर, अल्लाह ने बयान फरमाया, हमने इन यहूदियों को बंदर और सूअर खिंजीर बना दिया इनकी हरकतों की वजह से, और इनकी जिल्लतों और रुसवाई इस दुनिया के अंदर हमने मुकद्दर में लिख दिया है। तो आज इसी यहूद के दीन को आज मुसलमान पसंद कर रहे हैं। कब्र के अंदर हमें जो सवाल होगा, मा दीन का, तुम्हारा दीन क्या है, हम जवाब देंगे दीन इस्लाम, हमारा दीन क्या है, हमारा दीन इस्लाम है। उसके बाद तीसरा सवाल है, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है। दुनिया के अंदर तुम्हें कोई बताने वाला, तुम्हें कोई सिखाने वाला आया, अगर हम नेक रहेंगे, हम मोमिन बन के रहेंगे, हम अल्लाह वाले बन के रहेंगे, हमारे दिल के अंदर अल्लाह से मोहब्बत होगी, रसूल से मोहब्बत होगी, हमें मस्जिद से मोहब्बत होगी, कुरान से हमें मोहब्बत होगी, हम अपने ईमान को बचा करके हम रखेंगे, तो कब्र के अंदर हम इन सवालों का जवाब आसानी से दे देंगे। हमारे दरमियान आखिरी नबी जो बन करके आए, आखिरी रसूल जो बन करके आए, वह आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आखिरी नबी और आखिरी रसूल बन करके। मेरे भाइयों, कब्र के मरहले से और कब्र की जिंदगी से हर मुसलमान को गुजरना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब इंसान को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, कब्र हर इंसान को एक मर्तबा दबोचती है, एक मर्तबा कब्र हर इंसान को क्या करती है, दबाती है, उसको दबोचती है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर कब्र की सख्तियों से, कब्र के दबोचने से अगर कोई महफूज होता तो मेरे सहाबी रसूल साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, उस साद इब्न मुआज, मेरे नौजवानों, जरा साद इब्न मुआज की कैरेक्टर को आप पढ़िएगा। हमारे ही तरह नौजवान थे, 30 साल की उम्र में साद इब्न मुआज हजरत सैयदना मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर मदीना के अंदर इस्लाम कबूल करते हैं। 30 साल की उम्र है, नौजवान है, नबी का कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह। अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के हवाले कर देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर देते हैं। जब 36 साल के होते हैं, यानी सिर्फ 6 साल उन्होंने इस्लाम का जमाना पाया, 36 साल की उम्र में साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है। सहाबा इकराम साद इब्न मुआज के जनाजे को, उस नौजवान के जनाजे को अपने कंधों पर लाद करके कब्रिस्तान के अंदर लेकर के जा रहे हैं। सहाबा कहते हैं कि हमने जब साद इब्न मुआज के जनाजे को अपने कंधों पर उठाया तो साद का जनाजा बहुत हल्का था, इंतहाई हल्का था। इससे पहले हमने जितने लोगों का जनाजा उठाया भारी भरकम जनाजा था, लेकिन जब साद इब्न मुआज के जनाजे को हम अपने कंधों पर उठा करके कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो उस नौजवान का जनाजा
बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल हल्का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब साद इब्ने मुआज का इंतकाल हुआ, ऐ सहाबा जानते हो साद इब्ने मुआज का जनाजा इतना हल्का क्यों है? साद इब्ने मुआज से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता था। उस नौजवान ने अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया, अपनी जिंदगी को ईमान के मुताबिक गुजारा, अपनी जिंदगी तौहीद के लिए वक्फ कर दी। मदीना के अंदर गली गली में, चप्पे चप्पे में, कूचे कूचे में जा करके ये नौजवान यही कहता था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे लोगो कलमा पढ़ लो और इस कलमे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा मत करो। मदीना के अंदर गली गली, कूचे कूचे, घर घर के अंदर जा करके एक अल्लाह की गवाही देते हैं और एक अल्लाह की पहचान कराते हैं। ये नौजवान ये कहता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे नौजवान कहाँ है? आज हमारे नौजवान कहाँ है? उस नौजवान के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, जब उस 36 साल नौजवान का इंतकाल होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों से कहता है, आए फरिश्तों वफ्तहू लहू बाबम मिनस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के दरवाजे को खोल दिया और कहा, आए फरिश्तों जाओ साद इब्ने मुआज के लिए मगफिरत की दुआ करो और उनके जनाजे की नमाज के लिए जाओ और उनको कब्र के अंदर भी उतारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नौजवान के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों में ऐलान करा दिया। फरिश्तों ने 70,000, अल्लाह के नबी ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 70,000 फरिश्तों ने साद इब्ने मुआज उस 36 साल नौजवान की जनाजे के अंदर और उस मिट्टी के अंदर शरीक होते हैं। कहाँ है हमारे नौजवान? हमें भी तो कब्र के अंदर जाना है, हमारा भी तो हिसाब किताब होगा, हमारे पास भी तो फरिश्ते आएंगे। हम अगर नेक नहीं होंगे, हम अगर बुरे होंगे तो कब्र के बारे में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, वहीं पर कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर आदमी नेक है तो कब्र के अंदर वह अलबसूहु मिनल जन्ना, जन्नत का लिबास उसको पहना दिया जाता है, वह अफरसूहु मिनल जन्ना, और जन्नत के बिछौने कब्र के अंदर बिछा दिए जाते हैं। वफ्तहू लहू बाबम मिनस समा, जन्नत के जितने दरवाजे हैं, जन्नत के जितनी खिड़कियां हैं हवा के लिए और जन्नत की खुशबू के लिए, जन्नत की खिड़कियां और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ईमान नहीं होगा, हमारे पास तौहीद नहीं होगी, हमारी पेशानी मज़ारों पर झुक रही होगी, हमारी पेशानी इंसानों के सामने अगर झुकती होगी, हमारी ये पेशानी अगर गैरों के सामने झुकती होगी, तो फिर कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा? वफ्तहू लहू मिनन नार, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहन्नम के लिबास फरिश्ते, आग के लिबास फरिश्ते पहना देंगे, आग के बिछौने, जहन्नम के बिछौने उसी कब्र के अंदर बिछा दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बुरे आदमी के साथ फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐसे फरिश्ते को भेजा जाता है जिसके पास न आंख होती है और न कान होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, वला यराहु वला यस्माउ। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वो अंधा होगा, वो बहरा होगा, उसको कुछ नहीं सुनाई होगा, उसका एक ही काम होगा, एक भारी सा हथौड़ा उसके हाथ में होगा और उस बेनमाजी आदमी को, बेदीन आदमी को, उस जो है मुशरिक आदमी को कयामत तक उसको मारता रहेगा, उसकी पिटाई करता रहेगा। कब्र के अंदर उसका यह अज़ाब कयामत तक जारी रहेगा। अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह कब्र के अज़ाब से अल्लाह तू बचा ले। रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं हम तमाम लोगों को अल्लाह उस कब्र की और आखिरत के सवाल और जवाब की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह कब्र के सवाल के जवाब को हर मुसलमान के लिए आसान कर दे। रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह के नबी हर नमाज के अंदर जब तशहुद के अंदर बैठते तो कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते थे। वो नबी मांग रहा है जिसके सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिए। आज तो हमारी जिंदगी सुबह से शाम गुनाहों में गुजर रही है। सुबह उठते हैं तो पड़ोसी की बुराई हमारे ज़बान पे है, सुबह उठते हैं फलाना आदमी इतना आगे जा रहा है, उसका कारोबार इतना बढ़ रहा है। आज हमारे अंदर जलन है, हसद है,
غیبتیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو غیبت، شام ہوتی ہے تو چگلی کر کے ہم بستر پر جاتے ہیں، پورا دن اپنے مسلمانوں کی ٹو میں، اپنے مسلمانوں کی برائی میں، اپنے پڑوسیوں کی برائی میں، اپنے بھائیوں کی برائی میں آج ہم لگے ہوئے، پورا دن لگا ہوا ہے۔ فلاں صاحب بہت آگے بڑھ رہے ہیں، فلانے صاحب کی دکان بڑی آگے بڑھ رہی ہے، ہم کچھ ایسا کریں، ہم جو ہے بد دعا کر رہے ہیں، ہم جلن رکھ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں اے اللہ ہمیں ملے نہ ملے لیکن فلانے کی دکان بند ہو جائے۔ اللہ کے بندے، قبر کے اندر جانا ہے، حساب ہونا ہے، قبر کے اندر حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام عورتوں کو اے اللہ قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے اے اللہ تو بچا کر کے اے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی أکبر واللہ یعلم۔